हेलो एवरीवन। सो टुडेज टॉपिक इज़ हैमिल्टन प्रिंसिपल। सो फर्स्ट डिस्कस करेंगे कि हैमिल्टन प्रिंसिपल की हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ी। जितने भी टॉपिक हमने पहले अभी इससे पहले डिस्कस किए हैं उसके अंदर हमें अजम्पशंस ली थी कि कांस्टेंट नंबर ऑफ कांस्टेंट वहाँ पे ज़ीरो होंगे। So in case of different number of mechanical problem, when the force of constant are present, it means number of constant is finite here. It becomes practically difficult to obtain a solution using Newton's equations. In such cases, alternatives are developed. However, it should be clear that we need not formulate a new theory of mechanics because the Newton's theory is quite correct. So Newton law form indirectly basis for the Lagrangian formulation of mechanics, and more general foundation of Lagrangian formulation of mechanics is Hamilton principle. So it's all related to each other. So the statement of Hamilton principle, it states that the path actually transverse by a conservative holonomic यहाँ पे constant है, holonomic dynamical system from time t1 to t2 is that over which the integral of Lagrangian function between the time limit t1 and t2 is stationary. It means the time integral of Lagrangian is extremum. It means minimum or maximum. Lagrangian function is here L is equal to t minus v. T is here kinetic energy and v is here potential energy. So mathematically it can be written as I is here action integral I is equal to integration t1 से t2 L dtd is equal to extremum over the actual path of motion. सो अगर हम स्टेटमेंट ऑफ हैमिल्टन प्रिंसिपल को एक अलग वर्ड्स में देखें तो जो आई इंटीग्रल था, एक्शन इंटीग्रल था, तो जो हमारा उसका अगर वेरिएशन देखें, वर्चुअल वेरिएशन डेल आई, तो जीरो के इक्वल आएगा ओवर द एक्चुअल पाथ. सो नेक्स्ट इज डिडक्शन ऑफ हैमिल्टन प्रिंसिपल. कंसीडर ए holonomic conservative system which moves from point P to Q where P and Q represent initial and final configuration of the system at time t1 and t2 respectively. Let the actual path be represented by 1 and the path 2 and 3 represent any two neighboring paths. To deduce Hamilton principle, the following condition must be fulfilled. So first condition है del t must be equal to 0 and end points. End points कौन से हैं? Point P and Q, यानी कि initial and final points. Virtual displacement del r must be 0 at end points because initial and final points are fixed. Let the system is acted upon by a number of forces and force on ith particle is Fi. So the acceleration Ri double dot of this particle having mass Mi is given by Fi is equal to Pi dot, या कह सकते हैं F is equal to dP by dt. dP by dt को यहाँ पे लिखा हुआ है Pi dot इज इक्वल टू एम आई आर आई डबल डॉट इज इक्वल टू एम आई आर आई डबल डॉट को लिखिए यहाँ पे डी स्क्वायर आर आई अपॉन में डी टी स्क्वायर. फ्रॉम डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल सिलेबस में नहीं है लेकिन इसका हम रिजल्ट यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं. सो वी हैव समेशन आई एफ आई माइनस पी आई डॉट डेल आर आई इज इक्वल टू जीरो. पी आई डॉट की वैल्यू यूज़ कर लेंगे, एम आई आर आई डबल डॉट इसको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर. समेशन आई एफ आई डॉट डेल आर आई माइनस समेशन आई एम आई आर आई डबल डॉट इंटू में डेल आर आई इज इक्वल टू जीरो. अब ये वैल्यू इसके इक्वल है, या तो इसको इलेबरेट कर लो या फिर इसको इलेबरेट कर लो, बात सेम है. सो हम इस वैल्यू को इलेबरेट करेंगे. सो हमने फर्स्ट टर्म ली है डी वाई डी टी आर आई डॉट डॉट डेल आर आई. तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा तो पहले डिफ्रेंशिएशन फर्स्ट टर्म का होगा फिर सेकंड का होगा. जैसे कि पहले फर्स्ट टर्म का डिफ्रेंशिएशन होगा, सेकंड एज इट इज़, फिर प्लस में फर्स्ट टर्म एज इट इज़, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन. अब इसको हम लिख सकते हैं आर आई डबल डॉट डेल आर आई प्लस आर आई डॉट डी बाई डी टी डेल आर आई. अब दोनों साइड्स यहाँ पे एम आई को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों साइड्स एम आई को मल्टीप्लाई कर दो और इस टर्म को इधर ले आओ. तो एम आई आर आई डबल डॉट डॉट डेल आर आई, ये वही टर्म है जिसको हम इलेबरेट कर रहे थे. इज इक्वल टू एम आई डी बाई डी टी आर आई डॉट डेल आर आई माइनस आर आई डॉट इंटू में डी बाई डी टी डेल आर आई. अब डेल आर आई जो वेरिएशन है ये एक्चुअल पाथ और नेबरिंग पाथ के बीच में है. तो डेल आर आई को हम लिख सकते हैं डेल आर आई इज इक्वल टू आर आई डैश माइनस आर आई. आर आई डैश का मतलब क्या है, जो ये वैल्यू है ये नेबरिंग पाथ के लिए है. इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे डी बाई डी टी डेल आर आई इज इक्वल टू डी आर आई डैश बाई डी टी माइनस डी आर आई अपॉन में डी टी इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं डेल आर आई डॉट. सो जो ये वैल्यू है ये पुट कर देंगे हम थर्ड इक्वेशन के अंदर.
थर्ड इक्वेशन में पुट करने के बाद वैल्यू आ जाएगी एम आई आर आई डबल डॉट डॉट डेल आर आई इज इक्वल टू एम आई ब्रैकेट डी बाई डी टी आर आई डॉट डॉट डेल आर आई माइनस आर आई डॉट डॉट डेल आर आई डॉट। सो एम आई अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है तो डी बाई डी टी एम आई आर आई डॉट डॉट डेल आर आई माइनस एम आई आर आई डॉट डेल आर आई डॉट। समेशन ले लेंगे अभी इस इक्वेशन के अंदर। सो समेशन आई एम आई आर आई डबल डॉट डेल आर आई इज इक्वल टू समेशन आई डी बाई डी टी एम आई आर आई डॉट डेल आर आई माइनस समेशन आई एम आई, अब जो वैल्यू थी आर आई डॉट डॉट डेल आर आई डॉट, इसको हम लिख सकते हैं डेल आर आई डॉट स्क्वायर बाय 2, जो हमने यहाँ पे पुट कर दिया वैल्यू है। नेक्स्ट इक्वेशन के अंदर बस डेल बार आ गया, समेशन को यहाँ पे अंदर ले लिया है। समेशन आई हाफ एम आई आर आई डॉट स्क्वायर। अब इसके अंदर जो ये टर्म है, फर्स्ट टर्म जो ये है समेशन आई एम आई आर आई डबल डॉट डॉट डेल आर आई, और इसको हम लिख सकते हैं एम आई आर आई डबल डॉट को लिख सकते हैं हम एफ आई, सो एफ आई डॉट डेल आर आई। अब ये किसके इक्वल है, वर्क डन बाय फोर्स एफ आई ऑन डिस्प्लेसमेंट डेल आर आई, इसको लिख सकते हैं डेल डब्ल्यू। सेकेंड टर्म है ये वाली टर्म, इसको लिख सकते हैं समेशन आई हाफ एम आई आर आई डॉट स्क्वायर। आर आई डॉट किसके इक्वल है, वी आई के इक्वल, सो समेशन आई हाफ एम आई वी आई स्क्वायर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, सो इसको लिख सकते हैं डेल टी। अब दोनों वैल्यू इक्वेशन 5th में पुट कर दो। पुट करने के बाद डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू समेशन आई डी बाई डी टी एम आई आर आई डॉट डॉट डेल आर आई माइनस डेल टी। डेल टी को इधर ले आओ, सो डेल डब्ल्यू प्लस टी इज इक्वल टू दिस टर्म। इसको अब इंटीग्रेट कर देंगे बिटवीन टाइम लिमिट्स t1 एंड t2। जैसे हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन t1 से t2 समेशन आई डी बाई डी टी एम आई आर आई डॉट डॉट डेल आर आई डी टी। अब डी टी से डी टी यहाँ पे नेगलेक्ट हो जाएगा और इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल आउट हो जाएगा, जिससे जो इसकी वैल्यू है वो एंड पॉइंट्स पे लेनी है। अब एंड पॉइंट्स के ऊपर जो डेल आर आई की वैल्यू है वो 0 के इक्वल होती है। सो यहाँ से इंटीग्रेशन t1 से t2 डेल डब्ल्यू प्लस डेल टी डी टी की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाएगी। नेक्स्ट इज फॉर अ कंजर्वेटिव सिस्टम डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू समेशन आई एफ आई डॉट डेल आर आई इज इक्वल टू माइनस डेल वी। अब हम बात करें जनरलाइज पोटेंशियल केस में, वहाँ पे भी हमने यहाँ सेम रिजल्ट यूज़ किया था जब हमने डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डेल वी लिया था, और वहाँ हमने स्केलर पोटेंशियल अगर डिपेंड करता है सिर्फ पोजीशन पे, तब v क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। हियर आल्सो v इज वेयर पोटेंशियल एनर्जी। अब डेल डब्ल्यू को पुट करना है माइनस डेल वी इन प्रीवियस इक्वेशन, सो पुट कर देंगे माइनस डेल वी, डेल बार ले लो t माइनस वी डी टी इज इक्वल टू 0। अब t माइनस वी किसके इक्वल है, हमने स्टार्टिंग में बात करी थी लैग्रेंजियन फंक्शन के इक्वल। सो डेल बार आ जाएगा इंटीग्रेशन t1 से t2 एल डी टी इज इक्वल टू 0, और समेशन t1 से t2 एल डी टी किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पे एक्सट्रीमम, यानी कि आइदर ए मिनिमम और ए मैक्सिमम वैल्यू। यही हमारा हैमिल्टन प्रिंसिपल है।